Good morning everyone. Today for 11th standard commerce I am going to continue with the subsidiary functions of bank. So in my previous session I have completed the main functions of bank, that was to lending activity, to accept deposit, to do the interbanking transaction and to make the investment. That are the some of the main functions that are being done by bank. Now today we will discuss I am going to explain you about some subsidiary functions that are being conducted by the bank. So to look after the financial transaction of customer. So generally two types of customers are coming into bank, that are borrower and depositor. तो दो तरह के कस्टमर जो बैंक में आते हैं वो है borrower और depositor. When a check is being issued in favor of any person, the bank on behalf of the person whose name is written in the check will collect the amount or will make the payment to the person whose name is written in the check. तो चेक की फैसिलिटी भी बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिसमें जो व्यक्ति है जिसने चेक लिखा होता है उसके बिहाफ वो दूसरे को पेमेंट कर देता है उस चेक की अमाउंट को. यानी कि बैंक की चेक की फैसिलिटी के थ्रू एक जो अमाउंट रहती है जो कोई चेक होल्डर किसी और को देना चाहता है, उस अमाउंट को देने की जो गतिविधि है या देने की जो एक्टिविटी है वो बैंक अपने से करता है. सो द अमाउंट विच अ चेक होल्डर वांट टू पे टू समवन, that function is being undertaken by the bank on behalf of him. In the same way, when the check is being returned for someone, the bank will collect the deposit from the check holder and he makes the payment from the same deposit. तो बैंक यहाँ पे कलेक्शन और लैंडिंग दोनों की एक्टिविटी कंडक्ट करता है. एक तरह से बैंक जो है वो चेक होल्डर से अमाउंट भी कलेक्ट करता है और दूसरी तरह से बैंक जो है वो चेक होल्डर के द्वारा चेक के थ्रू जो पेमेंट चेक होल्डर किसी को करना चाहता है उसका पेमेंट जो है वो बैंक अपने से कर देता है. सो बैंक इज कंडक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ बोरोविंग एज वेल एज लैंडिंग ऑल्सो बाय द वे ऑफ चेक. सो along with that, some other function is also being done by the bank for the customer, that is payment of electricity bill and phone bill, insurance premiums and transfer of money from one bank account to another. तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, टेलीफोन बिल होता है या इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है उसका जो पेमेंट रहता है वो भी बैंक के द्वारा किया जा सकता है या फिर बैंक के मीडियम के थ्रू किया जा सकता है. और बैंक जो है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए भी काफ़ी यूजफुल रहता है. सो इट इज़ एन इफेक्टिव मीडियम in order to make the payment for different types of bills and also to transfer an amount from one account to the another. Now second point is related to do transaction that is associated with foreign exchange. तो जो foreign exchange है वो जो भी import export का business रहता है that is being compulsory being done by the bank. तो अभी के जो रूल्स है उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस रहता है वो कंपल्सरली बैंकों के द्वारा कैरिड फॉरवर्ड किया जाता है. अब इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में इट रिक्वायर्स द फॉरेन एक्सचेंज. तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होता है वो फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू कैरिड फॉरवर्ड होता है. अब इसमें बैंक क्या रोल प्ले करते हैं? The bank which obtain the permission for RBI can perform the task that is related to foreign exchange and provide service and receive the document related to foreign exchange. तो जिन बैंकों को RBI के द्वारा परमिशन मिली है वो फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े हुए ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं. वो जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उनको रिसीव कर सकते हैं. इसके अलावा उनके जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड सर्विस है वो भी बैंक प्रोवाइड कर सकता है. तीसरा पॉइंट, लेटर ऑफ क्रेडिट.
letter that is issued by one bank in favor of other bank. So letter of credit is a kind of letter that is issued by one bank in favor of any another bank. It ensures the payment of certain amount at certain time by the person mentioned in the letter. लेटर ऑफ क्रेडिट में एक ऐसा अश्योरेंस, एक ऐसा गारंटी दिया होता है कि जो भी अमाउंट लेटर ऑफ क्रेडिट में मेंशन की गई है उस अमाउंट का पेमेंट उस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा जिसका नाम लेटर ऑफ क्रेडिट में मेंशन किया गया है, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर दिया जाएगा जिस टाइम पीरियड को उसने लेटर ऑफ क्रेडिट में मेंशन किया है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक गारंटी, एक एश्योरेंस देती है कि जो भी पर्टिकुलर अमाउंट है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जिस व्यक्ति का नाम लेटर ऑफ क्रेडिट में दिया गया है उसके द्वारा उसका पेमेंट हो जाएगा। नाउ इट मेक्स ट्रांजैक्शन ट्रस्टवर्दी। लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू जो भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होते हैं या फिर जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस ओरिएंटेड ट्रांजैक्शन होते हैं वो काफ़ी ट्रस्टवर्दी हो सकते हैं, यानी कि जिस पे आप विश्वास कर सको। सो बैंक अर्न्स कमीशन बाय दिस फैसिलिटी। इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हुए जो बैंक है वो अपने लिए एक इनकम कमीशन के फॉर्म में अर्न करती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टू इशू द ट्रैवलर्स चेक। It is used to prevent oneself in losing cash or getting it stolen during traveling. ये भी एक फैसिलिटी है जो बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसमें एक व्यक्ति खुद की जो कैश अगर वो कहीं पे ट्रैवल करता है तो खुद को कैश लूज करने से या फिर खुद कैश की किसी तरह से चोरी होने से अगर खुद को बचाना है तो वो ट्रैवलर चेक का यूज कर सकता है। यानी कि किसी तरह से कैश या मनी जो होता है उसे लूज करने से या फिर किसी तरह अगर कैश चोरी होता है उस स्थिति से खुद को बचाने के लिए वो ट्रैवलर्स चेक का यूज कर सकता है while he is traveling abroad or to any other place. So this can be withdrawn from outstation or from a foreign bank. तो इस ट्रैवलर्स चेक की फैसिलिटी के थ्रू विड्रॉवल किसी भी और बैंक से किया जा सकता है, किसी भी फॉरेन बैंक से व्यक्ति अपना विड्रॉवल कर सकता है। यूज have been decreased with the facility of ATM. ट्रैवलर्स चेक का जो यूज है मींस इस फैसिलिटी का यूज जो पहले होता था वो काफी हद तक रिड्यूस हो गया है क्योंकि अभी ज्यादातर लोग ATM का यूज कर रहे हैं। I want to go through this point once again. ट्रैवलर्स चेक्स इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जब लोग अब्रॉड में या फिर किसी और कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो तो उनके यहाँ जो कैश होता है वो कहीं पे चोरी हो सकता है या फिर उनका जो भी कैश उनके पास पड़ा हो वो कहीं पे गुम हो सकता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए लोग ट्रैवलर्स चेक का यूज करते हैं। अब ट्रैवलर चेक्स की मदद से आप किसी भी कंट्री के बैंक में से कैश विड्रॉ कर सकते हो। तो ये एक फैसिलिटी है जो ट्रैवलर चेक के थ्रू अवेलेबल है, और इस ट्रैवलर चेक की फैसिलिटी का यूज अभी काफी हद तक घट गया है क्योंकि अभी ज्यादातर लोग ATM की फैसिलिटी यूज कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सर्विस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फैसिलिटी और सर्विस दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय बैंक। So check written by bank in favor of a branch of the same bank that can be termed as a draft. ड्राफ्ट यानी कि एक ऐसा चेक होता है जो एक बैंक अपनी खुद की ब्रांच के लिए इशू करता है। Secured medium while sending money to a person or firm. ड्राफ्ट जो होता है वो एक तरह का सिक्योर मीडियम होता है जिससे कि कोई व्यक्ति या फिर कोई फर्म कहीं पे मनी ट्रांसफर कर सकता है। सो दैट इज समथिंग अबाउट द ड्राफ्ट। ड्राफ्ट कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड द ऑर्डर विच इज बीइंग
a kind of order to issue the amount on the name of the person whose name is being mentioned in the draft. ड्राफ्ट एक तरह से एक ऑर्डर को भी प्रेजेंट करता है कि जिस किसी के भी नाम ड्राफ्ट में मेंशन किया गया है उसको ड्राफ्ट से जुड़ी हुई अमाउंट दे दी जाए. So these are some of the subsidiary functions of the bank, that the bank provide the customer oriented services. It also does the transaction that is related to foreign exchange, and it also issue the letter of credit, which is once again a facility that is being provided by bank. It also issue traveler's check, and it provide the service of demand draft. Now the remaining two functions I will explain to you in my next session. Jai Swaminarayan everyone, good morning to you all. Today we will continue with the rest of the point which are there in the subsidiary functions of bank. तो अभी जो बाकी के जो पॉइंट्स है जो सब्सिडरी फंक्शन ऑफ बैंक में आते हैं वो हम थोड़ा समझेंगे. प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट ऑफ अ पर्सन एसोसिएटेड विद बैंक. So the customers are frequently involved to do the transaction with the bank, and because of that only the banks are knowing the financial capability of the customer. जो कस्टमर बैंक से डे टू डे ट्रांजेक्शन्स करते हैं उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के बारे में बैंक को पता होता है. So the bank is knowing about the financial capability of its customer. Information provided by the bank is useful or reliable for the firm or institute to do the credit oriented transaction, or in order to know the financial or credit capacity of a firm or institute. तो जब भी क्रेडिट ओरिएंटेड ट्रांजैक्शन किसी फर्म या इंस्टीट्यूट को करना है, या फिर किसी भी फर्म या इंस्टीट्यूट को किसी भी दूसरे फर्म या इंस्टीट्यूट की क्रेडिट कैपेसिटी के बारे में पता करना होता है, तब बैंक के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको रिलायबल और उस पर विश्वास किया जाता है. Issue solvency certificate for the same. In order to show the credit capacity of any person or institute, the bank is also issuing the solvency certificate. इस प्रक्रिया को यानी इस एक्टिविटी को या फिर इस फैसिलिटी को देने के लिए बैंक जो है वो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट भी इशू करता है. तो बैंक एक प्रॉपर मीडियम है जिससे कि आप किसी भी फर्म या इंस्टीट्यूट की क्रेडिट कैपेसिटी के बारे में पता कर सकते हो, यानी कि जिससे कि आपको ये मदद मिलती है कि आप अगर किसी फर्म या इंस्टीट्यूट के साथ क्रेडिट ओरिएंटेड ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको ये पता होता है कि वो आपको किसी भी इमरजेंसी या फिर जब भी आपको जो क्रेडिट आपने दिया है वो आपको वापस लौटा पाएंगे या फिर नहीं लौटा पाएंगे. तो किसी भी व्यक्ति या फर्म का क्रेडिट ओरिएंटेड कैपेसिटी अगर पता करना हो तो उस वक्त बैंक जो है वो ये सर्विस भी प्रोवाइड करती है अगर वो व्यक्ति किसी भी बैंक से जुड़ा हुआ हो तो. Now provide service of underwriter. So when the new company is entering in the market, they may have the fear whether they will get the minimum amount of capital or not. If they are not getting the minimum amount of capital or fund from the market, they may face the difficulty to start a business. तो जब भी कोई नई कंपनी जो मार्केट में आती है उनको थोड़ा फियर रहता है कि मार्केट में से जो रिक्वायर्ड फंड उन्हें मिलने चाहिए, जो अमाउंट ऑफ कैपिटल उन्हें मिलना चाहिए वो उन्हें मिलेगा या नहीं. तो उस वक्त द बैंक विल एंश्योर द मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर देम. उस वक्त जो बैंक है वो उनके लिए अंडरराइटिंग का फंक्शन मींस एज अ अंडरराइटर का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं और वो एंश्योर करते हैं कि कंपनी को मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन मिल जाए जिससे कि उनका बिजनेस ओरिएंटेड एक्टिविटी या फिर उनका बिजनेस फंक्शन जो है वो चल सके. नाउ द लास्ट पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू
facility of ATM and safety deposit vault. Now the bank is also providing you the facility of ATM and safety deposit vault. Along with that, it also provides you the facility of credit card and debit card. तो बैंक सेफ्टी डिपॉजिट वॉल्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जिसमें आप किसी तरह के कोड को डाल के कुछ अपने पैसे सेव कर सकते हो। और इसके अलावा एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलरिंग मशीन, जिसमें से आप कभी भी जब चाहो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू विड्रॉल कर सकते हो। तो ये कुछ फैसिलिटी है जो बैंक के द्वारा दी जाती है। थैंक यू।